Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 4. Hope you all are fine and fit at home and enjoying with good health. My dear little kids, my name is Asma Sohail. I will teach you social study. And first of all, welcome to you in new class, new session 2021. Students, hope you all you have collected the copy sets from the school, and if you have collected, you take out two red copies from the bag. These two copies are your social study copies. On first copy you have to write copy number 1, and on second copy you have to write copy number 2. In previous classes you have to write classwork and test copy, but in this session you have to write copy number 1 and copy number 2. Let's fill the first page, front page of the copy. On the first front page of this copy, here you write your name, class, section and subject. In subject column you have to write social study, and in bracket you have to write number 1. Same like this you fill the front page of the second copy and write in subject column social study, and in bracket you have to write number 2. After filling the first page, open copy, and you have to also fill this page. आपने इस पेज को भी fill करना है. On this page you have to write your name, class, section, subject name, branch, girls branch or boys branch, and your teacher name. Okay students, after that turn the page, and on next page before starting the work you have to write date and day. Don't forget to write date and day. Date, day, day and class work, homework जो भी आपको मिलेगा. First of all you mention date and day and class work, and don't forget to draw margin line. आपने margin line draw करना नहीं भूलना. On first line you have to write the lesson number. आपको जो भी lesson number पढ़ाया जा रहा है you have to write first lesson number 1, and the heading should be underlined. After that you write if we are going to do the question answer. अगर आपको question answer दिए जा रहे हैं कि आप इनको solve करें, on first line you have to write question number 1, its answer. question number 1 के बाद आपने next line में उसका आंसर राइट करना है, and then you leave one line. उस आंसर के बाद आपने एक लाइन लीव करनी है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 राइट करना है. इज इट क्लियर? Now you first of all you complete your copy, and now let's start our topic. Okay, class 4, now let's talk about peace. Do you know what is peace? Peace is a time without any fights or wars. Peace can mean a state of quiet or calm. Everybody in the world want peace. आपको पता है पीस का मतलब क्या है? पीस का मतलब ये है कि जब दुनिया में कहीं भी जंग नहीं हो रही होती, कोई भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहा होता, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और डिसएग्री नहीं करते. और अगर किसी बात से डिसएग्री करते भी हैं तब भी आप रिस्पेक्टफुली उसका ओपिनियन सुनते हैं और उसके साथ कोई किसी किस्म की फ़ाइट नहीं करते. बिकॉज a fight or war is not the solution of any issue. जंग करने से और लड़ाई करने से कोई भी मसला हल नहीं होता, आपको पता है. इसी तरह जब कोई फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से एंग्री हैं, नाराज़ हो गई हैं, तो आप एक दूसरे को मारना शुरू कर दें, एक दूसरे को बुलिंग करें, मतलब उसको धमकी दें कि आई नेक्स्ट डे आई विल कॉल माई फादर, मैं अपने फादर को लेकर आऊँगा, एंड दे विल पनिश यू, वो आपको पनिश देंगे. दिस इज़ नॉट द राइट वे. अगर आपकी किसी बात पर अपने किसी फ्रेंड से डिसएग्रीमेंट है, कोई फ़ाइट हो गई है, लड़ाई हो गई है, आपको वो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा और आप उसकी बात से एग्री नहीं कर रहे, तो थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाए, थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाए, उस बात पर सोचें और उसके बाद कोई फ़ैसला करें. गुस्से में किया हुआ कोई भी फ़ैसला जो है वो सही नहीं होता. और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी थर्ड पर्सन से ओपिनियन ले सकते हैं. इस तरह फ़ाइट नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी और आप आराम से अपने मसले के हल को निकाल सकते हैं. इट इज़ पीस. क्या है पीस? व्हेन यू लिव टुगेदर हैप्पीली, फ्रेंडली, रिस्पेक्ट अदर, respect the opinion of others, follow the rules, love, they all are
peace. Okay, now look, a peacemaker. Here is a chart who makes a peacemaker. एक peacemaker है जिसने ये चार्ट बनाया. क्या कहना चाहता है? The peacemaker says that the people who are peacemaker जो होते हैं, they are very kind and compassionate, help others, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं. यूज़ ग्रेट मैनर्स. मैनर्ड होते हैं अपनी टर्न. और मैनर्ड लोग कौन होते हैं? दे ऑलवेज वेट देयर टर्न. ये भी आपके मैनर्स में शामिल है ना, कि जब कोई बात कर रहे हो दो लोग तो हम अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे. जब हमारी टर्न आएगी तब हम बात करें. एक्सक्यूज, गुड वर्ड यूज़ करें, लाइक एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, सॉरी. अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई है तो उस पर अकड़ना और इतराना नहीं चाहिए, बट यू शुड से सॉरी. आपको सॉरी कहना चाहिए अगर आपको मालूम है कि वो गलती आप ही की थी, वो मिस्टेक आप ही ने की थी. वेट द टर्न, अपनी टर्न का वेट करें. शेयर. शेयरिंग इज़ द बेस्ट हैबिट. शेयरिंग, अपनी चीज़ों को जो शेयर करते हैं. और रेज देयर हैंड्स इफ़ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर. दे ऑलवेज रेज देयर हैंड्स. अगर उनको अपनी टीचर से क्लास में कोई क्वेश्चन करना है तो वो हमेशा हैंड को रेज करते हैं. फिल अदर पीपल्स बकेट. दैट्स मीन यू फिल अ बकेट व्हेन यू शो लव टू समवन. फिल बकेट का मतलब है कि अगर आप किसी के चेहरे पर किसी को प्यार से देख रहे हो, व्हेन यू स्माइल, मुस्कुरा रहे हैं, मेक समवन स्पेशल और डू समथिंग काइंड, तो इसका मतलब है कि सामने वाले के जो चेहरे पे खुशी है, जो मुस्कुराहट है, जो स्माइलिंग है, दैट्स मीन फिल अदर पीपल्स बकेट. वो उसको शो करवा रही है. लिसन टू द टीचर. अपने टीचर की बात को बहुत गौर से सुनते हैं. फॉलो द रूल्स. रूल्स को फॉलो करते हैं. टेल द ट्रूथ. हमेशा सच बोलते हैं. डोंट ब्रेक द लॉज. कानून को नहीं तोड़ते हैं. टॉक क्वाइटली. दैट्स मीन डोंट शाउट. शाउट नहीं करते, हमेशा आराम से बात करते हैं और ताकि सामने वाले को उनकी बात समझ आ जाए. क्लीन अप विदाउट बीइंग आस्क्ड. और कोई भी मैस नहीं फैलाते हैं. गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में डालते हैं. कुछ भी ऐसा नहीं करते जिससे सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचे. रिस्पेक्ट अदर्स. अपने सामने वालों की इज्जत करते हैं. अब एज अ पीस मेकर दे आर काइंड. काइंड होते हैं वो. फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंडली नेचर होती है उनकी. प्ले विथ फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं. हेल्पिंग. हेल्पर्स होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं. शेयरिंग. अपनी चीज़ें शेयर करते हैं. हग मतलब अगर अपने किसी दोस्त से किसी से मिलते हैं तो उसको गले लगाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उससे मिलते हैं. Now student, this is your home task, and your home task is, what is peace? First of all, you have to draw your hand on your copy number 1. आपने कॉपी नंबर 1 पे अपना हैंड ड्रॉ करना है और उसके बाद आपने अपने फिंगर्स में बताना है लिख कर कि व्हाट इज़ पीस. पीस क्या है? पीस किसे कहते हैं? फाइट को कहते हैं. डिसएग्रीमेंट को कहते हैं. काइंड को कहते हैं. काइंडनेस को कहते हैं. लव को कहते हैं. और शेयरिंग को कहते हैं. फ्रेंडशिप को कहते हैं. और हेट को कहते हैं. नहीं, लव को कहते हैं. और प्ले विथ फ्रेंड्स, हग, ऑल आर पीस. वो सारी चीज़ें जिनके करने से आपके इर्द गिर्द के माहौल में खुशी का आपको फील हो, एहसास हो, हैप्पीनेस हो और सब लोग हैप्पी हों, तो उसको हम पीस कहते हैं. अब आपने बताना है वो क्या करेंगे आप जिससे पीस होगा. एक तो लव है, ऑब्वियसली जब आप प्यार से रहेंगे तो वहाँ पे पीस ही होगा. उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ फाइट करेंगे या प्ले करेंगे, वो आपने यहाँ पे 4 थिंग्स राइट करने हैं. फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.